इब्लीस, मैं हूं इब्लीस, धुतकारा हुआ, निकाला हुआ, तकब्बुर करने वाला और जुबान से फिरने वाला, अर्श से जमीन पर पटक दिया गया, पस्ती में धंस दिया गया। अब मुझे इसके खात्मे तक मोहलत दी गई है। फिर सुन ले मुझे अपनी कसम है, ए आदम अबुल बशर, जमीन पर मेरी जितनी भी मोहलत है, आराम से नहीं बैठेगा ये इब्लीस। नेकी से पहले फर्जंदान आदम को फरेब देकर गुनाहों में जकड़ दूंगा, उन्हें जहालत में गुमराह कर दूंगा। जहालत में, शीरीन जहालत में। ए मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, नमरूद के बाद तेरा ही बुलंद मकाम है, तेरा ही। कौन है तू? कौन है? क्या चाहता है इस बुतखाने में? बाबिल की सरजमीन नमरूद इब्ने कूश की फरमारवाई का सबसे अजीम मरकज थी, जो उस दौर के चंद बड़े शहरों में शुमार होता था। इस बड़े शहर का नाम और वजूद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत से 4 सदी पहले सफ़े तारीख से मुकम्मल महव होकर ज़मीबोस हो गया था। उस दौर के लोग छोटे आशियानों की पूजा पाठ के सख्त मुखालिफ हो गए थे और सिर्फ नमरूद को ही खुदाओं का खुदा समझते थे। बाबिलियान, बाबिलियान, ओ बाबिलियान, तुम्हें कसम देता हूँ खुदाओं के खुदा नमरूद की, मेरे पास भी एक ऐसा खुदा था जिसकी मैं झाड़ पहुंच में मसरूफ था। मैं उस पर प्यार से हाथ फेर रहा था कि गुबार झाड़ते हुए अचानक एक ज़रब लगी और मैं अब तक लानती बन गया। रास्ता दो, हट जाओ रास्ते से। खुदाओं का सनदगर आजर बुत तराश, इस मसले का इलाज आ गया है, छोड़ दो रास्ता। जब बेअबानी पत्थर से बुत तराशा जाता है इस सखी और माहिर बुत तराश रहनुमा के हाथों से, तो बाबिल के बड़े बादमियों के मुकद्दर बदल जाते हैं, काले बादल छट जाएं और बाबिल की फिजा नूर से मुनव्वर हो जाए। क्योंकि आजर कलम तराशी करेंगे उन खुदाओं के खुदा के पैकर पर। इसी वजह से तो तमाम खुदाओं के खुदा नमरूद इन्हें चाहते हैं और इनका एहतराम करते हैं।
ہاتھوں بنایا ہوا نہیں یہ بت، یہ بت تراش اویس کا کام ہے۔ تو ایک خوش گفتار اور خوش کلام شاعر ہے، ماہر بت تراشوں نے تیرے کلام کے ذریعے بھی خدا بنائے ہیں، تیرے کلام کی شان و شوکت کے مطابق۔ ہٹ جاؤ، جھک جاؤ، راستہ چھوڑو، جھکو، احترام کرو۔ راستہ دو، جھکو۔ دیدے پھڑ کر اس نمرود کو دیکھ رہا ہے جس نے میری قدر کو نہ جانا۔ میں اویس اس نے آزر کے بتوں کو زیادہ اہمیت دی، اسے عزیز جانا۔ نمرودیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کن کے ساتھ؟ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا۔ کس کو؟ حالانکہ وہ آزر بت تراش کا بھتیجا ہے۔ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، لے گئے اسے بابا، وہ لے گئے اسے۔ جو بھی سجدہ نہ کرے سزا پاتا ہے۔ لوط، تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ گرفتار کر کے لے گئے اسے۔ میرے بیٹے ابراہیم، اس اندھیری کوٹری کی فصیلیں زیادہ آرام دہ تھی چچا کے گھر سے۔ میں کیوں سجدہ کروں اس بندے کا جو مجھ جیسا ہے، ایک ہی ہڈی اور گوشت کا؟ خاموش رہو ابراہیم، تمہاری زبان کے تلخ نشتر نے ان نمرودیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس کے بعد آزر کا کیا دھرا بھی کام نہیں آئے گا۔
آذر، کیوں تو نے میرے بیٹے سے بت تراشی کروائی؟ اس روز جب تو نے ایک غنی بیٹے کے راز سے مجھے آگاہ کیا، میں نے اسے اس لیے کام پر لگایا کیونکہ میرے تمام بیٹوں میں سے اس میں تراش کاری کا ہنر موجود تھا۔ کیا ہنر ہے! واہ، کتنی خوبصورت تراش کاری کی ہے! کاش تیرا باپ تارک زندہ ہوتا اور دیکھتا کہ کتنی ظرافت سے تراش رہا ہے۔ تو میرے بیٹوں سے تیز تراش کار ہے۔ تراشتے رہو، تراشتے رہو، تراشتے رہو کہ تو ہی میرا جانشین ہوگا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ تمہارے کس کام آتا ہے؟ پوچھتے ہیں اس کو۔ پتھر کو؟ اسی کی پوجا کرتے ہو جسے اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ تو آذر کا بھتیجا اور سہارا ہے، چچا کے ساتھ۔ اب تو تراشے گا نہیں، بیچے گا بابل کے بازار میں، بیچے گا، خداؤں کا بازار لگائے گا تو۔ بت لے لو، رنگا رنگ تراشا ہوا، سستے اور مہنگے، نہ کسی کے لیے نقصان دہ ہیں اور نہ مفید۔ لے لو، بت لے لو، سستے بھی ہیں اور مہنگے بھی، مجھ سے خریدیں، کیونکہ آپ کے لیے نہ مضر ہیں نہ مفید، سستے اور مہنگے۔ آئیں، آئے خرید لیں، آئے مجھ سے خریدیں، نہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ فائدہ۔ آئے سودا کر لیں۔ اے ابراہیم، میں تم پر حق کے بدری رکھتا ہوں، محبت سے پالا ہے، چاہت سے پالا ہے تمہیں میں نے۔ سوچا تھا غنی ہو جاؤ گے اور اس بت سازی کی صنعت کے سرور و سالار بنو گے، نہ کہ اس کی آفت و بلا۔ ان پتھروں سے تراشتے ہو، انہیں تراشو، انہیں تراشو، اپنی ظرافت، ہوشیاری اور خوبصورتی سے انہیں تراشو، اپنے غنی ہاتھوں سے۔ میں چاہتا ہوں ان سخت پتھروں کو موم کی طرح نرم اور ملائم بنا دو، اپنے ان ہاتھوں سے تراشو۔ یہ ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ میں نے تجھے مہنگے داموں کے عوض آذر سے خریدا ہے، پھر بھی میں تجھ پر قادر ہوں۔ میں ہوں تیرا خدا، تجھے جھکنا پڑے گا۔ چل جھک۔ تو بابلیان کے لیے خدا ہے، میرا تو خدا نہیں ہے۔ جھک جا، چل جھک جا۔ یہ کیا ہے؟ نمرود معظم کا تخت۔ یہ تخت نہیں ہے، جہالت ہے۔ نمرود ایسے تخت کا سہارا نہیں لیتا جو جہالت کا نشان ہو۔
تو ذہین ہے، لیکن بابلیان کی جہالت جاننے کی حد تک، اتنے عرصے تک جب تک یہ لوگ اپنی جہالت میں باقی ہیں، خدائی حکومت سے بھی آگے ہم ان کی جہالت پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اپنے بندوں کی جہالت پر قابو رکھو۔ آزاد ہو گئے۔ ہاں، نمرود کے ظلم کا اسیر آذر کی مداخلت پر آزاد ہوا۔ ڈرتے نہیں؟ ممکن ہے کہ وہ نمرود کا جاسوس ہو۔ نمرود کے جاسوس مہربان نہیں ہوتے سارا۔ تمہیں کیسے پتا سارا کی مہربانی؟ نمرودی کمزور لوگوں کو نہیں پکڑتے۔ یہ شاہکار آذر ہے، میرے یہ ہاتھ معجزہ گر ہیں۔ نمرود اگر تجھے ایک بار دیکھ لے تو اپنی ساری خدائی بھول جائے۔ چمکا دو اسے۔ لوط کیا ہوا؟ کچھ دنوں سے پہاڑوں پر گیا ہوا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت عبادت عبادت! ابراہیم میرا بھتیجا ہے لیکن مجھ سے نہیں۔ میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، شاید لوٹ گیا ہوں۔ تو نمرود کی آنکھیں ہیں برباد، آذر کے اس بت کو نمرود کی درگاہ میں مغلوب کر دو گے، نہ کہ محفوظ۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ آذر کے ہاتھوں بنایا ہوا وہ بڑا بت ہرگز بت خانے تک نہیں پہنچے گا۔ وہ بت جو میں نے بنایا تھا اسے نمرود کی نظر میں بڑھاؤ گے۔ بہت مشکل ہے اویس۔ اس دن جب تو نمرود کے دربار سے نکالا گیا تھا، آذر کو خداؤں کی صنعت گری کا تمغہ بابل کے فرما روا سے مل گیا تھا، اور یہی حقیقت بھی ہے اویس۔ نہیں نہیں، جان لیے وہ چیز جو میں نے اس دن دیکھی تھی اگر نمرود پر ظاہر کر دوں تو بڑے برے دن تجھ پر آ جائیں گے۔ مجھے دھمکی مت دے اویس، اگر تو نے زبان کھولی زندہ درگوں کر دوں گا تاکہ آئندہ کسی بھی چیز کو نہ دیکھ سکے تو۔ اس بات کا بھی سوچ رکھا ہے میں نے، تیرے راز ایک امانت دار کو بتا دیے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس دن جب میں کسی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں، نمرود تک اس بات کو پہنچا دینا۔ نہیں بھول سکتا وہ دن جب میں شکار کے لیے جنگل کی طرف گیا تھا۔ پتا ہے درختوں کی اوٹ سے میں نے کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا اونچے قد کا۔ آہستہ بول۔ ٹھیک ہے، آذر کا بت بابل کے بت خانے تک نہیں پہنچے گا۔ اب جاؤ بیس، یہاں سے چلا جا۔ بہت اچھا برباد، بہت اچھا۔ برباک، اویس بت تراش ہمارا راز نمرود پر فاش کر دے گا اگر اس کے اصل رقیب آذر بت تراش کو میدان بدل نہ کیا ہم نے۔ اگر کہو
तो उसे भी मार दे और नमरूद को भी। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों के अमालों पर गौर किया? देखा तूने ये सब बुत परस्त हैं, भटके हुए। सुन रहा है? तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी मदद करो, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम ऐ चमकदार रस्साम, खुदाई करते हैं इन बंदों पर। ऐ दश्तो दरिया पर फैले हुए आसमानी सितारों, हमारे मुस्तकबिल के मालिक, हमारी जान और माल के मालिक तुम ही हो। हमारे मुल्क को मालिक और हमारे जहां के मालिक। हम सब बंदों की फरियाद सुनो। किसकी परस्तिश करते हो? तेरे वजूद से हमें तकलीफ हो रही है, जा चला जा यहां से। कौन से अजसाम की परस्तिश कर रहे हो? हालांकि इस दोपहर के वक्त आसमान पर कोई सितारा नहीं। मैं इबादत करता हूं उसकी जिसका जलाल इनसे भी मुनव्वर है। हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। ऐ बड़े सितारों, तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम तुम्हारे लुत्फ। ऐ ज़ोहरा, मेरे खुदा पर कौन सी बला आ गई? क्यों गुरूब हो गया? क्यों महताब की रोशनी इस पर हावी हो गई? नहीं, मैं अब ज़ोहरा की इबादत नहीं करूंगा। अब चांद है मेरा खुदा, इससे भी अजीम तर और नूरानी। क्या चाहते हो इन अजसाम परस बंदों से? जा यहाँ से चला जा, दूर हो जा। मैं भी इन्हीं बंदों में से हूं। गुरूब हो गया, चांद भी गुरूब हो गया। अब ये जलता सूरज इन बंदों पर हाकिम है। दूर हो जा, जा दूर हो जा, दूर हो जा। सूरज भी ज़ोहरा और चांद की तरह गुरूब हो गया। ये कैसे खुदा हैं जो गुरूब हो जाते हैं? मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो कभी फना नहीं होता। मेरे खुदा आसमानी अजसाम नहीं, खुदा यानी हमेशा बाकी, ना के फानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सालों तक बुत परस्तों को हिदायत दी। आग के खुदा की तरफ ले जाऊंगा इन्हें। वो सितारों की परस्तिश करते थे, आसमानी अजसाम की एक मलून के कहने पर। सुनो, मैं तेरी कुर्बानी करता हूँ खुदाओं की राह में, इसलिए कि इस बच्चे के पैर से खुदाई बुत टूट गया। ये वहां से जा रहा था कि इसका पैर बड़े बुत से टकरा गया और वो वहीं बिखर गया। ये कैसा खुदा है जो अपने आप को भी संभाल नहीं पाता और एक बच्चा उसे यूं खाड़ दे? पता नहीं कि अब मेरा नया खुदा ये टूटा हुआ खुदा है या वो जिसे मेरे बेटे ने तोड़ डाला। आखिरकार तमाम मखलूक तुझे ही आलम का मुदब्बिर जानती है। कोई शक नहीं, तू ही हस्ती का मुदब्बिर है। सब जगह हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हर जगह तेरा वजूद। क्यों इनकी जहालतों को वाज़ेह नहीं कर देता? मैं जानता हूं तू है, तू मौजूद है, तू कादिर मुतलक है। फिर कुछ बोल, कोई निशानी दिखा। मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी सदा पहुंच रही है।
जवाब नहीं दिया इब्राहिम? मेरा साथ दे। मेरी मदद कर कि इसका साथ न दूं। मैं जिब्राइल हूं, परवरदिगार का पैगाम अल्लाह ने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया है ताकि अक़वाम बशर तक उसका पैगाम पहुंचा सके। वो जो शिर्क करते हैं और इनकार करते हैं परवरदिगार की फरमारवाई और वजूद में लाने वाली रबूबियत का, वो गुमराही की राह में भटक गए हैं। इस आवाज के जरिए ऐ इब्राहिम, खुदा के पैगंबर, तुझे हम सलाम भेजते हैं। अगर आजर का बुत यहाँ आया तो नमरूद को सब कुछ बता दूंगा। पर हाँ, मैं खुदाए वाहिद की तरफ से भेजा गया हूं तुम पर ए कौम बाबिल। इब्राहिम, कौन सी सोच तुम्हारे जहन में है? ये मुनाफा बख्श दिमाग, ठंड से मुंजमद जहन चाहते हो? मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, आओजारी करता हूं। मेरा सकून तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं। पैगंबर, किस चीज ने तुम्हें इन खुदाओं के खिलाफ कर दिया है? वो सुनहरे दिन जिस घड़ी के आने का हम दिन रात इंतजार करते रहे, यूं खराब न करो। आज़र, क्या तुम जानते हो ये जमादात जो बुत हैं और जिन्हें तुम खुदा कहते हो, क्या तुम्हारे चाहने पर तुम्हारा कलाम सुनते हैं? क्या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को इन बुतों की प्रस्तिश करते पाया है। अगरचे ये बेअसर है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हीं की इबादत करेंगे। मैं इबादत करता हूं उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, और वो हिदायत करता है अपने लुत्फ करम से। वही खुदा जो अपनी करामात से जब मुझे भूख लगे तो ग़िज़ा दे, जब प्यास लगे तो सैराब कर दे, जब बीमार हो जाऊं तो शिफा दे। वो खुदा जो मुझे मौत देगा और फिर वो जिंदा करेगा आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए। और वही खुदा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श दे, और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर हो सके तो बाबिल से दूर हो जाओ, चले जाओ। बर्बाद ने खुदाओं के बादशाह के साथ खयानत की है। झूठ है, झूठ है। झूठ है। ये आदमी सरापा झूठ है, रियाकार और फरेबकार। निकाल दो इसे दरबार से, फितनागरी करने आया है। दूर हो जाए यहां से ऐ मलून। चला जाता हूं वजीर मोहतरम, लेकिन उस वक्त तक नहीं जाऊंगा
जब तक बर्बाक की खयानत करास बाबिल के खुदाओं के बादशाह पर फाश न कर दूं और जंगल के वाक़े से उसे आगाह न कर। बाबिल के खुदाओं के बादशाह की कसम मार दूंगा तुझे। ले जाओ इसे। नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मुझे ये राज कहने का मौका जरूर दे। छोड़ दो इसे। ये कमीना बदजन है, इंतकाम का जहर उगल रहा है। इसका इरादा है कि फरमारवा की इज्जत को दागदार करे। इसे ये तकलीफ है कि फरमारवा आज़र नवाज हैं। वो मनहूस दिन जब मैं तफरी की नीयत से जंगल की तरफ निकला, मैंने देखा एक बुलंद कामत घोड़ा था, जहां बाबिल की ये मलिका और ये मर्द पहलू नशीन थे। तेरी बीवी ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए काम किया है नमरूद। हुकूमत बाबिल पर बर्बाद छाया हुआ है। इसने तुझे धोखा दिया है। ढील न देना इसे नमरूद, आजाद न छोड़ना इसे नमरूद। अच्छा ठीक है उवैस, सुन लिया। जा। चल जा यहां से। खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। खत्म करेगा तू इस खेल तमाशे को, खत्म करेगा बर्बाद। उवैस ने हमारा राज फाश कर दिया है। अगर तू अपने वादे से जरा भी पीछे हटा तो नमरूद के जरिए तुझे कत्ल करवा दूंगी बर्बाद। तलवार दो। तू अपने बाप और कबीले का इंतकाम लेना चाहती थी। ले ये तलवार, मार दे मुझे। ले ले इसे, मार दे मुझे। नहीं, नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे माफ कर दे। बाबिल के लोग मेरी फरमाबरदारी करते हैं और तुझे खुदा का बादशाह मानते हैं। मेरी मौत बाबिल की हुकूमत को मुतज़लज़िल कर देगी। मुझे मत मार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चल जाओ, माफ किया। बाबिल को भी तेरी जरूरत है। तू अभी भी वजीर है। मैं जान की आवाज चाहता हूँ। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बादशाह मुअज़्ज़म, मैं अजीम बादशाह। मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं इस पर रहम न करता। हम ईद की रस्में अदा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आओगे या नहीं? सारा भी हमारे साथ आएगी। मैं बीमार हूं। तुम भी जाओ लूत।
لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے، اسی میں مصلحت ہے، تم بھی جاؤ۔ بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله اے میرے عظیم اور مہربان خدا، نمرود کے بعد تیرا ہی بلند مقام ہے، تیرا ہی۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ میں خداؤں کو نابود کرنے والا۔ تیری آواز خوفناک نہیں، لیکن تیرا وجود تکلیف دہ ہے۔ میری آنکھوں میں بینائی نہیں۔ کیوں تو خداؤں کی ہونے والی رسموں کو چھوڑایا ہے؟ اگر نظر نیاز لایا ہے رکھ دے اور نکل جا۔ تو پھر کیوں نہیں کھاتے یہ کھانا؟ تو پھر کیوں اپنا دفاع نہیں کرتے؟ کیوں تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے ان بتوں کو میں نے توڑا ہے؟ اس لیے کہ تو ہی وہ واحد شخص تھا جو ان خداؤں کی رسومات میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا۔ ابراہیم بھتیجا ہے آزر بت تراش کا۔ بابل کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ یہ کلاڑی تیری کلاڑی ہے ابراہیم۔ کلاڑی مجھے دے دو، ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو اپنے بنائے ہوئے پیکر پر مارے، چاہے وہ آزر کے طائفے سے ہی کیوں نہ ہوں۔ آزر سے سنا ہے بابلیان کو ان کے بڑے بت کے کاندھے سے یہ کلاڑی ملی ہے۔ کیوں یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ کام اس بڑے بت کا تھا؟ اس سے پوچھیں اس نے کیوں خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ سب جانتے ہیں ان خداؤں میں کلام کی طاقت نہیں، یہ ساکت ہیں، زبان ہلا ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں جانتا ہوں۔ تم ایسے خداؤں کی پرستش کرتے ہو جو بات ہی نہیں کر سکتے۔
ऐसे को वसीला करार देते हो जो इस सरजमीन और कौम के लिए ना फायदामंद है और ना नुकसान दे। लेकिन तुम वजूद खुदा की हकीकत से जो वाहिद है और तमाम नफा और नुकसान का मालिक है गाफिल हो गए हो। उफ हो तुम पर कि जिसकी तुम पूजा करते हो। यानी फिर ये सच है, तेरा दावा पैगंबरी इब्राहिम बस करो। बर्बाक, शहर से बाहर लोगों के सामने फलक तक भड़कती आग जलाई जाए। इस पैगंबर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए ढेर सारी लकड़ियों से ये पैगंबर जला दिया जाए। इससे इताअत मेरे सरकार। जलाने के मरासिम में सारे बाबिलियान शिरकत करें, सारे। ओबैस, मैं हूं शिकस्त खुर्दा हाजिर। इस लड़ाई में तू जीता, मैं ये अपना बुतखाना बेच रहा हूं। अब तेरा कोई रकीब नहीं रहा। अपनी जिंदगी के सरमाए को चलता देखूंगा। अब शफाअत भी मेरे काम की न रही। मैं नमरूद की नजरों से गिर गया हूं। अब तेरी बारी है कि तू दौड़ लगा। कहां है? कहां है? इब्राहिम, कहाँ है तेरा वो फरियाद खुदा जो तुझे निजात दे इस भड़कती आग से? कहाँ है? मैं हूं इब्राहिम, उस यकता और पाक परवरदिगार का पैगंबर। तुम खुदाए वाहिद के अलावा जिनकी परस्तिश करते हो बेअसर और पत्थर के बने हुए हैं, और जिन्हें तुम अपने ही हाथों से तराशते हो। जान लो, जिनकी तुम खुदाए वाहिद के अलावा परस्तिश करते हो तुम्हारी रोजी पर कादिर नहीं। छोड़ दो अपने इन झूठे खुदाओं को। अपनी रोजी का मुतालबा खालिक से करो और उस खालिक ही की इबादत करो, ना कि मखलूक की। अजीम नमरूद, आग भड़क उठी है। कैसे इस मुश्किन को इस अलाव में डालें?
गुंजनी, नहीं, सब्र करो। मैं भी इस आग को बर्दाश्त कर सकती हूँ। तूने औरत को आसमानी कहा है पैगंबर। तूने करामत बख्शी माओं को। वो खुदा जो कुल्हाड़ी की जरूरत से महफूज ना रह सके खुदा नहीं। मैं सारा उसी खुदा की परस्तिश करती हूँ जिसकी तुम करते हो। मुझे भी इसके साथ जला दो क्योंकि मेरे पास भी कुल्हाड़ी है। और अब मैं इसी कुल्हाड़ी से नमरूद के बुत तोड़ूंगी। नमरूद के बुत खाने को तहस नहस कर दूंगी। सारा चल यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं हूँ हवा का फरिश्ता इब्राहिम, आया हूँ तुम्हारी मदद करने। मैं हूँ पानी का फरिश्ता इब्राहिम, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं इब्राहिम। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ए अफलाक के मुर्सिलो, वही बेहतरीन का एहसास है। देखो लोगो, आग इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई। यकीनन खुदा इब्राहिम के साथ है। मेरा खुदा पूरी कायनात का मालिक है। ना उसने किसी को जना, ना उसको किसी ने जना। जिंदगी और मौत उसी की कुदरत में है। बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा हलीम है। वही जो जिंदा करता है और मौत देता है, जिंदगी देता है और लेता है।
خداؤں کے بادشاہ کے حکم پر موت کی سزا کے 2 مجرم پیش کیے جائیں. چلو زندان کی طرف چلتے ہیں. اس بت شکن کو بھی وہاں لے جاؤ. کھول دو اسے. تو آزاد ہے. تو آزاد ہے. اسے بھی کھول دو. تو خدا کا نبی ہے. دیکھ تجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے. اے ابراہیم، میں تیری رسالت پر ایمان لاتا ہوں. میرے لیے بخشش کی دعا کرنا. تمام عمر تاریکی میں گزری، لیکن اب یہ لمحہ روشنی میں دیکھ لیا. ایک کی جان لی، دوسرے کو دوبارہ زندگی بخش دی. او ظالم! میرا خدا بڑا عظیم ہے کہ چاند اور سورج پر صرف وہی قادر ہے. خداوند روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو کل سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے تو نکال کر دکھا. ختم کریے کھیل. بابل سے نکل جا. بابل تجھے نہیں چاہتا. نکل یہاں سے. تو زمین کا خدا ہے، آسمان کے خدا کو مار کر دکھا. جلدی سے جاؤ اور تیاری کرو. ہم بابل کے بلند ترین مینار پر جائیں گے اور ابراہیم کے خدا سے جنگ کریں گے. تو بہت ہی چالاک ہے برباد. سچ کہا تھا تو نے. میں نے تیری بات پر بہت سوچا. تو نے کہا تھا نمرود کی حکومت ایک مضبوط ستون. آج میں بابل کی اونچائی پر آیا ہوں تاکہ اپنی قدرت مطلق بابل کے لوگوں کو دکھاؤں. ایسا تیر چھوڑوں گا کہ ابراہیم کا خدا مغلوب ہو جائے گا اور دوسرے حکومتی ستون کا تو نے جو کہا تھا
गिरा दूंगा उससे। पिछले वजीर की हमारे मकाम मंजिलत पर बुरी नजर थी। उस वक्त एक जवान सरदार था। उस वजीर को शिकस्त देकर तू अपनी काबिलियत फहम फरासत के मुताबिक उसका जानशीन बना और फिर तू गाफिल होकर मेरा रवि का शिकार हो गया। अगर तुझ पर रहम करूं तो फिर नमरूद नहीं रहूंगा। खुदाओं के बादशाह, क्या कहना चाहते हो? नमरूद एक खुदाई मुतलक ताकत है, मजीद नहीं चाहता। ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, मीनार का कह रहा। बर्बाक कैसे अपने खुदाओं से विदा करे? खुदाया, मुझे बख्शे। खुदाओं के बादशाह, नहीं नहीं, मुझे बख्शे। अजीम नमरूद, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे। नहीं। जल्दी से कोई आए। इब्राहिम, मैंने इब्राहिम को परवान चढ़ाया, मैंने इब्राहिम को पाला। ना उम्मीद ना हो, खुदा तौबा करने वालों को पसंद करता है। खुदा उससे कह दो मैंने इब्राहिम को पाला है, मैं चचा हूँ इब्राहिम का, मैंने उसके परवान चढ़ाया। हौसला करो, मुझे बख्श दे मुझे। मैंने तुम्हें पाला है, आज़र ने पाला है। जा इब्राहिम, अपने खुदा से कह मुझे माफी दे दे मुझे।
देख लो बाबिल के खुदाओं के बादशाह का सवाल। बाबिल का सवाल हो गया। नमरूद छोटी सी चींटी से झगड़ रहा है। नए खुदा की तलाश करनी होगी। मैं और मेरे बाबा पूरे यकीन के साथ तुम्हारी रिसालत पर ईमान लाए हैं। वो तुम्हारे सामने आने से शर्मिंदा है, इसलिए मुझे भेजा है। एक मेहरबान को भेजा है। मैं शर्मिंदा हूं ये कहने से, लेकिन कहता हूं सारा के लिए क्या अच्छा शौहर हूं। मुझे रिसालत की यारी चाहिए। कबूल है? कबूल है। मैं इस शिर्क आलूद सरजमीन से हिजरत कर रहा हूँ अपने खुदा की जानिब। वो मुक्तदर और ताना है बंदगान की इस्लाह और उनके उमूर का। इब्राहिम का गुजर कनान और मिस्र से हुआ। जमाना उनके साथ साथ रहा। फिरौन मिस्र के पास एक कनीज थी जिसका नाम हाजर था। हाजर सारा की कनीज थी। उस वक्त इब्राहिम ने हबरूद पहुंचकर घर बनाया और माश के लिए ज़रई जमीन खरीदी। सलाम सारा। इब्राहिम, यहाँ कौन सी चीज कम है? किसी चीज की नहीं।
किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज के बगैर भी तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं सारा। नस्ल अंबिया उम्मतों के लिए जरूरी है। मेरी औलाद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इब्राहिम की नस्ल मुझसे नहीं, मैं अपनी कनीज हाजरा तुम्हें बख्शती हूँ। इब्राहिम की नस्ल इंसानों से बढ़तर है। ऐ खुदा के पैगंबर, औलाद का वजूद नबी का हक है। मेरे और तुम्हारे दरमियान इश्क हाकिम है। मैं तेरी आशिक हूँ इब्राहिम। ये मत चाहो। मैं यही चाहती हूँ। अब मैं समझा क्यों जिब्राइल ने खुदा की जानिब से बशारत दी थी। एक बड़ी कौम मेरी नस्ल से वजूद में आएगी। ये खुदा का वादा है। मैं हाजरा से बात करूंगी। लूत, कल रात मैंने ख्वाब देखा। मर्दों का एक गिरोह आपस में शहवत रानी में मसरूफ था। तारीकी में डूबी सरजमीन और वो लानती लोग। जानता हूं खालिक वादहु ला शरीक ने इसलिए तुम्हें चुना है कि सदून की सरजमीन पर फासिक व फाजिर कौम की तरफ जाकर उन्हें फासिद अमाल से रोको। ये कलाम वही है। इसी तरह जैसे उनके चचा हजरत इब्राहिम रिसालत के लिए चुन लिए गए। मैंने हाजरा से बात कर ली है। क्या कहा उसने?
उस दिन जब नमरूद की आग खुदा के हुक्म से मेरे लिए गुलजार बन गई, पाक व मुताहर औलाद की ख्वाहिश थी जानशीनी और बकाए रिसालत के लिए, ऐसा फर्जंद जिसकी नस्ल से अजीम तरीन बंदगाने खुदा पैदा हों। इस्माइल और उस अजीम सिलसिले का आखिरी पैगंबर अहमद। मेरी सुराही पानी भरा है पीने के लिए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं और ना ही तेरी रहनुमाई की। मुझे कनीज नहीं चाहिए। तू मेरी कनीज नहीं, तू पैगंबर की बीवी है, पैगंबर की बीवी। मेरी मोहब्बत से मायूस हो गए। ऐ अल्लाह के नबी, तर्क कर दिया मेरी मोहब्बत को। मायूसी शैतानी वसवसा है, धोखा ना खाना। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, मेरी रिसालत के लिए। सारा, हसद की आग 100 गुना ज्यादा है नमरूद की आग से। गुलजार बना दे इसे। निकाल दो उन्हें। हाजिर मेरी बीवी है, इस्माइल मेरा बेटा है। नहीं, नहीं सारा, मैं ये नहीं कर सकता। बारे इलाहा, ये इब्लीस मरदूद नफरत का बीज बो रहा है मेरे रिसालत में। पनाह मांगता हूं मैं। अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को यहां से ले जा यरूशलेम की तरफ और दाखिल कर दे इबादत की सरजमीन पर हिजाज। तेरा परवरदिगार इनका मुहाफिज है तमाम शर और फितने से। रुखसत का वक्त है हाजर। खुदा चाहता है कि तुम यहां रहो और मैं अबरोन में। ए खुदा के पैगंबर, आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएं?
اس مقام کو صفا کہتے ہیں اور وہ چوٹی ہے مروا کی. وحی کے دوران جبریل نے اس بارے میں بتایا تھا. ہم مر جائیں گے اس گرم صحرا میں. رحم کرو پیغمبر. اپنے بچے پر یہاں ہر طرف خشکی اور تپش ہے. اے اللہ اس مقام کو امن کی جگہ قرار دے. میں اپنی نسل کو بیت الحرام کے قریب اس بنجر وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں نماز قائم کرنے کے لیے. اے پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور اسی کے مطابق انہیں روزی دے تاکہ اس طرح یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. میں یہاں ہوں. میں یہاں ہوں. تجھے محسوس کر رہا ہوں. قریب سے قریب. پہلے سے بھی قریب. تیری بارگاہ کی تپش کو محسوس کر رہا ہوں. اسماعیل تیرا بیٹا. اس کی جدائی میں بےتاب ہوں. اسماعیل جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اب وہ جوان ہو گیا ہے. سرزمین حجاز کی طرف لوٹ جا ایک مرتبہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آمادہ کر قربانی کے لیے. نہیں یقین نہیں آتا. نہیں کنعانی ہوں اس لیے تو مجھ سے یہ چاہتا ہے جو اپنے فرزندوں کو آگ میں جھونک دیتے تھے اپنی خواہشات کے لیے. اپنے جگر گوشے کو قربان کر دو. تاکہ ہر کوئی اپنی اولاد کو قربان کر دے. اس طرح تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی. نہیں نہیں نہیں
मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूँ। ऊंट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूँ आपका। खुशामदीद। ये कौन सी जगह है? जौहरम कबीला। मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। माँ, मेहमान आया है। इब्राहिम। हाजर। इस्माइल तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जौहरम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जोरामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जौहरोमियम से नेक कबीला नहीं देखा। हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तपते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था, क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था।
तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफा और वो दूसरी चोटी मरवा की, और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा। ये पानी जो पी रहे हो ए खुदा के नबी, समसम के कुएं से है। कल कुर्बानी का दिन है खुदाए वाहिद के लिए। सबसे उम्दा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करूंगा बाबा। कुर्बानी कुर्बानगाह में मौजूद है, मीना के पहाड़ पर। अपनी मां को अलविदा कह दो मेरे बेटे। हम सफर पर जा रहे हैं। इस्माइल। जी बाबा। तुम अंबिया के ख्वाब के बारे में कितना जानते हो? सच्चा ख्वाब समझता हूँ। ख्वाब और बेदारी में वही के फरिश्ते ने हुक्म सुनाया
उस रब्बे वाहिद का कि कुर्बानी दो मेरे लिए। ये फरमाया कि तुम्हें कुर्बान कर दूं। बताओ इस सच्ची वही में तुम क्या देखते हो? जैसा खुदा चाहता है अंजाम दें, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। बाबा, आपको जो हुक्म हुआ है उसे पूरा करें। बाबा, रस्सी को मजबूती से बांधना ताकि जान आराम से निकल सके। खंजर तेज हो ताकि मौत आसान हो जाए। माँ को मेरा सलाम पहुंचा देना, कहना वो मेरी ख्वाहिश पर मुझे सौंपी गई इस इलाही जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया था। फख्र करो ए पैगंबर खुदा कि खालिक दो जहां तुझसे राजी है। तू पैगंबर का बहुत अच्छा मददगार है, ऐ नूर चश्म। क्या कर रहा है पैगंबर? बगैर सर का बेटा तेरे किस काम का? यूं तो तेरा कोई जानशीन नहीं रहेगा। लखते जिगर ज़िबा करने ले जा रहा है। इस मुल्क की बरकत के लिए कुर्बान गाह की तरफ जा रहा है। वाह हो तुझ पर इब्राहिम, जौहर मियान तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। बेटे का कत्ल वबाल जान बन जाएगा। ऐ पैगंबर,
खफा हो जा। वो दिन और साल जो साथ गुजारने थे मैं मौजूद न था। इस आसमानी कली को खिलने को भी न देखा था मैंने। और आज तुझे कुर्बान गाह की तरफ लाना पड़ा। ये कलाम वही था बेटा। मैंने कभी भी अल्लाह के फरमान पर शक नहीं किया, समझते हो? मुझे मेरा चेहरा फेर कर लिटाना बाबा, ताकि मेरी नजरें तुझे कुर्बानी के अमल से रोक न दें। दिल को थाम कर रखना बाबा। मेरे अल्लाह, मेरा इस्माइल तेरी तरफ आ रहा है। ये फिदिया तेरे नाम है या रब, वहदहू ला शरीक के नाम। इब्राहीम, इस्माइल को आजाद कर दे। इस्माइल तुझे बख्श दिया गया। इस तरह तू इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुआ तेरे परवरदिगार के नजदीक। खुदावंद तुम्हें इसकी जज़ाए खैर देगा और नेकी करने वालों के लिए ये एक खुला इम्तिहान है। अब खुदाबंद कादिर के हदिये की कुर्बानी कर और खुदा इस्माइल की जगह इस हदिये को कबूल करता है और इसका नाम नेक अमल में याद रखा जाएगा आइंदा आने वालों के लिए। इब्राहीम हबरून की तरफ लौट गए। कई साल गुजरने के बाद इसहाक पैदा हुए और वही ये इलाही अल्लाह के आखिरी पैगाम को बजा लाने के लिए इब्राहीम पर उतरी, खुदा के घर बैतुल्लाह की तामीर के लिए। तू मेरा जानशीन होगा, इस कौम का पैगंबर। तुझसे अहमद की खुशबू आती है, हल्का रिसालत का मोती। हमारा सलाम सीना बसीना उन तक पहुंचेगा। बाबा, हम इसकी तामीर कर सकते हैं। बात यह है कि इश्क में डूब जाओ या दुनियावी कामों में मसरूफ हो जाओ। मैं आशिक हूं बाबा, खुदा का आशिक। बेशक मेरे बेटे, ये वो ताकत है जिसे परवरदिगार ने हमारी रूह में बसाया है। हमारा जिस्म रूह की अताअत करता है। दो आशिकों की रूह हुक्म देती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
काबा, ये तौहीदी बुनियाद इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह के हाथों तामीर हो गया। सलाम हो इब्राहिम पर कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र वक्फ कर दी तौहीद की राह में। सलाम हो इब्राहिम पर जिन्होंने खाने तौहीद की बुनियाद रखी। सलाम हो नूह पर, सलाम इस्माइल और इसहाक पर, सलाम हाजरा और सारा पर, और सलाम उन पर जो आज मनासिक हज बजा ला रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह दूसरे उलुल अज़्म पैगंबर थे। उनके आसमानी सहीफे और उनकी याद अबद तक बाकी रहेगी। والنعمة لك والملك لا